1 year Bible reading plan, Acts 18 chapter 1 verse 23 verse, Job 9 chapter 10 chapter 11 chapter। एक साल का बाइबल रीडिंग प्लान, प्रेरितों के काम 18 अध्याय 1 वचन से 23 वचन तक, अय्यूब की पुस्तक 9 अध्याय 10 अध्याय 11 अध्याय। हम पढ़ेंगे इंग्लिश में किंग्स जेम्स वर्शन में से, हिंदी में BSI बाइबल में से। एक्ट्स 18 चैप्टर 1 वर्स से 23 वर्स। Paul, laboring with his hands and preaching at Corinth, is encouraged in a vision ministry of Apollos. First verse. After these things, Paul departed from Athens and came to Corinth, and found a certain Jew named Aquila, born in Pontus, lately come from Italy, with his wife Priscilla, because that Claudius had commanded all Jews to depart from Rome, and came unto them. And because he was of the same craft, he abode with them, and raft, for by their occupation they were tent makers. And he reasoned in the synagogue every Sabbath, and persuaded the Jews and the Greeks. And when Silas and Timotheus were come from Macedonia, Paul was pressed in the Spirit, and testified to the Jews that Jesus was Christ. And when they opposed themselves and blasphemed, he shook his raiment and said unto them, Your blood be upon your own heads. I am clean from henceforth. I will go unto the Gentiles. And he departed thence, and entered into a certain man's house, named Justus, one that worshipped God, whose house joined hard to the synagogue. And Crispus, the chief ruler of the synagogue, believed on the Lord with all his house. And many of the Corinthians, hearing, believed, and were baptized. Then spake the Lord to Paul in the night by a vision, Be not afraid, but speak, and hold not thy peace, for I am with thee, and no man shall set on thee to hurt thee, for I have much people in this city. And he continued there a year and 6 months, teaching the word of God among them. And when Gallio was the deputy of Achaia, the Jews made insurrection with one accord against Paul, and brought him to the judgment seat, saying, This fellow persuaded men to worship God contrary to the law. And when Paul was now about to open his mouth, Gallio said unto the Jews, If it were a matter of wrong or wicked lewdness, O ye Jews, reason would that I should bear with you. But if it be a question of words and names and of your law, look ye to it, for I will be no judge of such matters. And he drave them from the judgment seat. Then all the Greeks took Sosthenes, the chief ruler of the synagogue, and beat him before the judgment seat. And Gallio cared for none of those things. And Paul after this tarried there yet a good while, and then took his leave of the brethren, and sailed thence into Syria, and with him Priscilla and Aquila, having shorn his head in Cenchrea, for he had a vow. And he came to Ephesus, and left them there. But he himself entered into the synagogue, and reasoned with the Jews. When they desired him to tarry longer time with them, he consented not, but bade them farewell, saying, I must by all means keep this feast,
that cometh in Jerusalem, but I will return again unto you, if God will. And he sailed from Ephesus, and when he had landed at Caesarea and gone up and saluted the church, he went down to Antioch. And after he had spent some time there, he departed and went over all the country of Galatia and Phrygia in order, strengthening all the disciples. And एक्ट्स 18 चैप्टर 1 वर्स से 23 वर्स तक ही पढ़ना था, हमने पढ़ लिया। अब हम हिंदी में पढ़ेंगे इसी अध्याय को। प्रेरितों के काम 18 अध्याय, उसका 1 वचन से 23 वचन तक। प्रेरितों के काम 18 अध्याय 1 वचन से 23 वचन तक। कोरिन्थुस नगर में, पहले वचन से, इसके बाद पौलुस एथेंस को छोड़कर कोरिन्थुस में आया। वहाँ उसे अक्विला नामक एक यहूदी मिला, जिसका जन्म पुंतियुस में हुआ था। वह अपनी पत्नी प्रिस्किला के साथ इटली से हाल ही में आया था, क्योंकि क्लौदियुस ने सब यहूदियों को रोम से निकल जाने की आज्ञा दी थी। इसीलिए वह उनके यहाँ गया। उसका और उनका एक ही उद्यम था, इसलिए वह उनके साथ रहा और वे काम करने लगे। और उनका उद्यम तंबू बनाने का था। वह हर एक सब्त के दिन आराधनालय में वाद विवाद करके यहूदियों और यूनानियों को भी समझाता था। जब सिलास और तीमुथियुस मकेदुनिया से आए, तो पौलुस वचन सुनाने की धुन में यहूदियों को गवाही देने लगा कि यीशु ही मसीह है। परंतु जब वे विरोध और निंदा करने लगे, तो उसने अपने कपड़े झाड़कर उनसे कहा, तुम्हारा लहू तुम्हारी ही गर्दन पर रहे। मैं निर्दोष हूँ। अब से मैं अन्य जातियों के पास जाऊंगा। वहाँ से चलकर वह तीतुस युस्तुस नामक परमेश्वर के एक भक्त के घर में आया, जिसका घर आराधनालय में से लगा हुआ था। तब आराधनालय के सरदार क्रिस्पुस ने अपने सारे घराने समेत प्रभु पर विश्वास किया, और बहुत से कुरिन्थवासी सुनकर विश्वास लाए और बपतिस्मा लिया। प्रभु ने एक रात दर्शन के द्वारा पौलुस से कहा, मत डर, वरन कहे जा और चुप मत रह, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ और कोई तुझ पर चढ़ाई करके तेरी हानि न करेगा, क्योंकि इस नगर में मेरे बहुत से लोग हैं। इसलिए वह उनमें परमेश्वर का वचन सिखाते हुए 1.5 वर्ष तक रहा। जब गल्लियो अखाया देश का हकीम था, तो यहूदी लोग एका करके पौलुस पर चढ़ आए और उसे न्याय आसन के सामने लाकर कहने लगे, यह लोगों को समझाता है कि परमेश्वर की उपासना ऐसी रीति से करे जो व्यवस्था के विपरीत है। जब पौलुस बोलने पर ही था, तो गल्लियों ने यहूदियों से कहा, हे यहूदियों, यदि यह कुछ अन्याय या दुष्टता की बात होती तो उचित था कि मैं तुम्हारी सुनता, परंतु यदि यह वाद विवाद शब्दों और नामों और तुम्हारे यहाँ की व्यवस्था के विषय में है, तो तुम ही जानो, क्योंकि मैं इन बातों का न्यायी नहीं बनना चाहता। और उसने उन्हें न्याय आसन के सामने से निकलवा दिया। तब सब लोगों ने आराधनालय के सरदार सोस्थिनेस को पकड़ के न्याय आसन के सामने मारा, परंतु गल्लियों ने इन बातों की कुछ भी चिंता न की। अंताकिया को लौटना। 18 वचन से आगे। पौलुस बहुत दिन तक वहाँ रहा, फिर भाइयों से विदा होकर किंकिया में इसलिए सिर मुंडाया क्योंकि उसने मन्नत मानी थी, और जहाज पर सीरिया को चल दिया, और उसके साथ प्रिस्किला और अक्विला थे। उसने इफिसुस पहुंचकर उनको वहां छोड़ा, और आप आराधनालय में जाकर
यहूदियों से विवाद करने लगा। जब उन्होंने उससे विनती की, हमारे साथ और कुछ दिन रहे, तो उसने स्वीकार न किया, परंतु यह कहकर उनसे विदा हुआ, यदि परमेश्वर ने चाहा तो मैं तुम्हारे पास फिर आऊँगा। तब वह इफिसुस से जहाज खोलकर चल दिया और कैसरिया में उतरकर यरूशलेम को गया और कलीसिया को नमस्कार करके अन्ताकिया में आया। पौलुस की तृतीय प्रचार यात्रा 23 वचन से आगे। फिर कुछ दिन रहकर वह वहाँ से निकला और एक और से गलातिया और फ्रूगिया प्रदेशों में सब चेलों को स्थिर करता फिरा। जॉब चैप्टर 9, 10, 11 हम पढ़ेंगे किंग्स जेम्स वर्जन में से। Job chapter 9. Job acknowledging God's justice shows there is no contending with him. Man's innocence is not to be judged by his lot in this world. First verse. Then Job answered and said, I know it is so of a truth, but how should man be just with God? If he will contend with him, he cannot answer him 1 of 1,000. He is wise in heart and mighty in strength, who hath hardened himself against him and hath prospered, which removeth the mountains, and they know not, which overturneth them in his anger, which shaketh the earth out of her place, and the pillars thereof tremble, which commandeth the sun, and it riseth not, and sealeth up the stars, which alone spreadeth out the heavens, and treadeth upon the waves of the sea, which maketh Arcturus, Orion, and Pleiades, and the chambers of the south, which doeth great things past finding out, yea, and wonders without number. Lo, he goeth by me, and I see him not. He passeth on also, but I perceive him not. Behold, he taketh away, who can hinder him? Who will say unto him, What doest thou? If God will not withdraw his anger, the proud helpers do stoop under him. How much less shall I answer him and choose out my words to reason with him, whom though I were righteous, yet would I not answer, but I would make supplication to my judge. If I had called and he had answered me, yet would I not believe that he had hearkened unto my voice. For he breaketh me with a tempest, and multiplieth my wounds without cause. He will not suffer me to take my breath, but filleth me with bitterness. If I speak of strength, lo, he is strong, and if of judgment, who shall set me a time to plead? If I justify myself, mine own mouth shall condemn me. If I say I am perfect, it shall also prove me perverse. Though I were perfect, yet would I not know my soul, I would despise my life. This is one thing, therefore I said it, he destroyeth the perfect and the wicked. If the scourge slays suddenly, he will laugh at the trial of the innocent. The earth is given into the hand of the wicked, he covereth the faces of the judges thereof. If not, where and who is he? Now my days are swifter than a post. They flee away, they see no good. They are passed away as the swift ships, as the eagle that hasteth to the prey. If I say I will forget my complaint, I will leave off any heaviness and comfort myself. I am afraid of all my sorrows. I know that thou wilt not hold me innocent. If I be wicked, why then labor I in vain? If I wash myself with snow water and make my hands never so clean, yet shalt thou plunge me in the ditch, and mine own clothes shall abhor me. For he is not a man as I am, that I should answer him, and we should come together in judgment. Neither is there any days man
betwixt us, that might lay his hand upon us both. Let him take his rod away from me, and let not his fear terrify me. Then would I speak and not fear him, but it is not so with me. Chapter 10. Job taking liberty of complaint, expostulates with God about his afflictions. He complains of life and craves a little years before his death. First verse, my soul is weary of my life. I will leave my complaint upon myself. I will speak in the bitterness of my soul. I will say unto God, do not condemn me. Shew me wherefore thou contendest with me. Is it good unto thee that thou shouldest oppress, that thou shouldest despise the work of thine hands, and shine upon the counsel of the wicked? Hast thou eyes of flesh, or seest thou as man seeth? Are thy days as the days of man? Are thy years as man's days? That thou inquirest after mine iniquity, and searchest after my sin. Thou knowest that I am not wicked, and there is none that can deliver out of thine hand. Thine hands have made me and fashioned me together round about, yet thou doest destroy me. Remember, I beseech thee, that thou hast made me as the clay, and wilt thou bring me into dust again? Hast thou not poured me out as milk, and curdled me like cheese? Thou hast clothed me with skin and flesh, and hast fenced me with bones and sinews. Thou hast granted me life and favor, and thy visitation hath preserved my spirit. And these things hast thou hid in thine heart. I know that this is with thee. If I sin, then thou markest me, and thou wilt not acquit me from mine iniquity. If I be wicked, woe unto me. And if I be righteous, yet will I not lift up my head. I am full of confusion, therefore see thou mine affliction, for it increaseth. Thou huntest me as a fierce lion, and again thou shewest thyself marvelous upon me. Thou renewest thy witnesses against me, and increasest thine indignation upon me. Changes and war are against me. Wherefore then hast thou brought me forth out of the womb? Oh, that I had given up the ghost, and no eye had seen me. I should have been as though I had not been. I should have been carried from the womb to the grave. Are not my days few? Cease then, and let me alone, that I may take comfort a little before I go, whence I shall not return, even to the land of darkness and the shadow of death, a land of darkness as darkness itself, and of the shadow of death without any order, and where the light is as darkness. Chapter 11. Zophar reproves Job for justifying himself. He shows God's counsel is unsearchable. Blessing of repentance. First verse. Then answered Zophar the Naamathite and said, should not the multitude of words be answered? And should a man full of talk be justified? Should thy lies make men hold their peace? And when thou mockest, shall no man make thee ashamed? For thou hast said, my doctrine is pure, and I am clean in thine eyes. But oh, that God would speak and open his lips against thee, and that he would show thee the secrets of wisdom, that they are double to that which is. Know therefore that God exacteth of thee less than thine iniquity deserveth. Canst thou by searching find out God? Canst thou find out the Almighty unto perfection? It is as high as heaven. What canst thou do? Deeper than hell. What canst thou know? The measure thereof is longer than the earth, and broader than the sea. If he cut off and shut up, or gather together, then who can hinder him?
For he knoweth vain men, he seeth wickedness also. Will he not then consider it? For vain man would be wise, though man be born like a wild ass colt. If thou prepare thine heart and stretch out thine hands toward him, if iniquity be in thine hand, put it far away, and let not wickedness dwell in thy tabernacles. For then shalt thou lift up thy face without spot. Yea, thou shalt be steadfast and shall not fear, because thou shalt forget thy misery and remember it as waters that pass away, and thine age shall be clearer than the noonday. Thou shalt shine forth, thou shalt be as the morning, and thou shalt be secure, because there is hope. Yea, thou shalt dig about thee, and thou shalt take thy rest in safety. Also thou shalt lie down, and none shall make thee afraid. Yea, many shall make suit unto thee, but the eyes of the wicked shall fail, and they shall not escape, and their hope shall be as the giving up of the ghost. अय्यूब की पुस्तक 9, 10, 11 अध्याय पढ़ेंगे। अय्यूब का बिल्दद को उत्तर, BSI बाइबल में से पढ़ेंगे पहले वचन से। तब अय्यूब ने कहा, मैं निश्चय जानता हूँ कि बात ऐसी ही है, परंतु मनुष्य परमेश्वर के दृष्टि में कैसे धर्मी ठहर सकता है? चाहे वह उससे मुकदमा लड़ना भी चाहे, तो भी मनुष्य 1000 बातों में से एक का भी उत्तर न दे सकेगा। वह बुद्धिमान और अति सामर्थी है, उसके विरोध में हट करके कौन कभी प्रबल हुआ है? वह तो पर्वतों को अचानक हटा देता है, फिर उन्हें पता भी नहीं लगता। वह क्रोध में आकर उन्हें उलट पुलट कर देता है। वह पृथ्वी को हिलाकर उसके स्थान से अलग करता है, और उसके खंभे कांपने लगते हैं। उसकी आज्ञा बिना सूर्य उदय होता ही नहीं, और वह तारों पर मुहर लगाता है। वह आकाशमंडल को अकेला ही फैलाता है, और समुद्र की ऊंची ऊंची लहरों पर चलता है। वह सप्तर्षि, मृगशिरा और कचपचिया और दक्षिण के नक्षत्रों का बनाने वाला है। वह तो ऐसे बड़े कर्म करता है जिसकी थाह नहीं लगती, और इतने आश्चर्य कर्म करता है जो गिने नहीं जा सकते। देखो, वह मेरे सामने से होकर तो चलता है, परंतु मुझको नहीं दिखाई पड़ता, और आगे को बढ़ जाता है, परंतु मुझे सूझ ही नहीं पड़ता है। देखो, जब वह छीनने लगे तब उसको कौन रोकेगा? कौन उससे कह सकता है कि तू यह क्या करता है? परमेश्वर अपना क्रोध ठंडा नहीं करता। अभिमानी के सहायकों को उसके पांव तले झुकना पड़ता है। फिर मैं क्या हूँ जो उसे उत्तर दूँ और बातें छांट छांट कर उससे विवाद करूँ? चाहे मैं निर्दोष भी होता तो भी उसको उत्तर न दे सकता। मैं अपने मुद्दे से गिड़गिड़ा कर ही विनती कर सकता हूँ। चाहे मेरे पुकारने से वह उत्तर भी देता तो भी मैं इस बात की प्रतीति न करता कि वह मेरी बात सुनता है। वह आंधी चलाकर मुझे तोड़ डालता है और बिना कारण मेरे चोट पर चोट लगाता है। वह मुझे सांस भी लेने नहीं देता है और मुझे कड़वाहट से भरता है। जो सामर्थ्य की चर्चा हो तो देखो वह बलवान है, और यदि न्याय की चर्चा हो तो वह कहेगा मुझसे कौन मुकद्दमा लड़ेगा। चाहे मैं निर्दोष ही क्यों न हो, परंतु अपने ही मुँह से दोषी ठहरूंगा। खरा होने पर भी वह मुझे कुटिल ठहराएगा। मैं खरा तो हूँ, परंतु अपना भेद नहीं जानता। अपने जीवन से मुझे घृणा आती है। बात तो एक ही है। इससे मैं यह कहता हूँ कि परमेश्वर खरे और दुष्ट दोनों का नाश करता है। जब लोग विपत्ति से अचानक मरने लगते हैं तब वह निर्दोष लोगों के जांचे जाने पर हंसता है। देश दुष्टों के हाथ में दिया गया है, वह उसके न्यायियों की आंखों को बंद कर देता है। इसका करने वाला वही न हो तो कौन है? मेरे दिन हर कार्य से भी अधिक वेग से चले जाते हैं। वे भागे जाते हैं और उनको कल्याण कुछ भी दिखाई नहीं देता। वे तेजी से सरकंडों की नावों के समान चले जाते हैं, या अहेर पर झपटते हुए उकाब के समान। जो मैं कहूँ मैं विलाप करना भूल जाऊंगा और उदासी छोड़कर अपना मन प्रफुल्लित कर लूँगा। तो मैं अपने सब दुखों से डरता हूँ। मैं तो जानता हूँ कि तू मुझे निर्दोष न ठहराएगा। मैं तो दोषी ठहरूंगा। फिर व्यर्थ क्यों परिश्रम करूँ? चाहे मैं हिम में स्नान करूँ
और उसने हाथ खार से निर्मल करो और अपने हाथ खार से निर्मल करो, तो भी तू मुझे गड्ढे में डाल ही देगा और मेरे वस्त्र भी मुझसे घृणा करेंगे, क्योंकि वह मेरे तुल्य मनुष्य नहीं है कि मैं उससे वाद विवाद कर सकूं और हम दोनों एक दूसरे से मुकदमा लड़ सके। हम दोनों के बीच कोई बिचवई नहीं है जो हम दोनों पर अपना हाथ रखे। वह अपना सोंटा मुझ पर से दूर करे और उसकी भय देने वाली बात मुझे न घबराए, तब मैं उससे निडर होकर कुछ कह सकूंगा, क्योंकि मैं अपनी दृष्टि में ऐसा नहीं हूँ। 10 अध्याय पहले वचन से। मेरा प्राण जीवित रहने से उकताता है, मैं स्वतंत्रतापूर्वक कुड़कुड़ाऊंगा और मैं अपने मन की कड़वाहट के मारे बातें करूंगा। मैं परमेश्वर से कहूंगा, मुझे दोषी न ठहरा, मुझे बता दे कि तू किस कारण मुझसे मुकदमा लड़ता है। क्या तुझे अंधेर करना और दुष्टों की युक्ति को सफल करके अपने हाथों को बनाए हुए को निकम्मा जानना भला लगता है? क्या तेरी आंखें देहधारियों की सी है और क्या तेरा देखना मनुष्य का सा है? क्या तेरे दिन मनुष्य के दिन के समान है या तेरे वर्ष पुरुष के समयों के तुल्य है कि तू मेरा अधर्म ढूंढता और मेरा पाप पूछता है? तुझे तो मालूम ही है कि मैं दुष्ट नहीं हूँ और तेरे हाथ से कोई छुड़ाने वाला नहीं। तूने अपने हाथों से मुझे ठीक रचा है और जोड़कर बनाया है, तो भी मुझे नष्ट किए डालता है। स्मरण कर कि तूने मुझको गूंधी हुई मिट्टी के समान बनाया। क्या तू मुझे फिर धूल में मिलाएगा? क्या तूने मुझे दूध के समान उंडेलकर और दही के समान जमाकर नहीं बनाया? फिर तूने मुझ पर चमड़ा और मांस चढ़ाया और हड्डियाँ और नसें गूंथ कर मुझे बनाया है। तूने मुझे जीवन दिया और मुझ पर करुणा की है और तेरी चौकसी से मेरे प्राण की रक्षा हुई है। तो भी तूने ऐसी बातों को अपने मन में छिपा रखा। मैं जान गया कि तूने ऐसा ही करने की ठान लिया था। यदि मैं पाप करूं तो तू उसका लेखा लेगा और अधर्म करने पर मुझे निर्दोष न ठहराएगा। यदि मैं दुष्टता करूं तो मुझ पर हाय, यदि मैं धर्मी बनूं तो भी मैं सिर न उठाऊंगा, क्योंकि मैं अपमान से भरा हुआ हूं और अपने दुख पर ध्यान रखता हूं। और चाहे सिर उठाऊं तो भी तू सिंह के समान मेरा अहेर करता है और फिर मेरे विरुद्ध आश्चर्य करता है। तू मेरे सामने अपने नए नए साक्षी ले आता है और मुझ पर अपना क्रोध बढ़ाता है और मुझ पर सेना चढ़ाई करती है। तूने मुझे गर्भ से क्यों निकाला? नहीं तो मैं वहीं प्राण छोड़ता और कोई मुझे देखने भी न पाता। मेरा होना न होने के समान होता और पेट ही से कब्र को पहुंचाया जाता। क्या मेरे दिन थोड़े नहीं? मुझे छोड़ दे और मेरी ओर से मुंह फेर ले कि मेरा मन थोड़ा शांत हो जाए, इससे पहले कि मैं वहां जाऊं जहां से फिर न लौटूंगा, अर्थात अंधियारे और घोर अंधकार के देश में, जहां अंधकार ही अंधकार है और मृत्यु के अंधकार का देश, जिसमें सब कुछ गड़बड़ है और जहां प्रकाश भी ऐसा है जैसा अंधकार है। सोपर का तर्क 11 अध्याय पहले वचन से। तब नामाती सोपर ने कहा, बहुत सी बातें जो कही गई है, क्या उनका उत्तर देना न चाहिए? क्या बकवादी मनुष्य धर्मी ठहराया जाए? क्या तेरे बड़े बोल के कारण लोग चुप रहे? और जब तू ठट्टा करता है तो क्या कोई तुझे लज्जित न करे? तू तो यह कहता है, मेरा सिद्धांत शुद्ध है और मैं परमेश्वर की दृष्टि में पवित्र हूँ। परंतु भला हो कि परमेश्वर स्वयं बातें करे और तेरे विरुद्ध मुँह खोले और तुझ पर बुद्धि की गुप्त बातें प्रकट करे कि उनका मर्म तेरी बुद्धि से बढ़कर है। इसलिए जान ले कि परमेश्वर तेरे अधर्म में से बहुत कुछ भूल जाता है। क्या तू परमेश्वर का गूढ़ भेद पा सकता है? क्या तू सर्वशक्तिमान का मर्म पूरी रीति से जान सकता है? वह आकाश सा ऊंचा है, तू क्या कर सकता है? वह अधोलोक से गहरा है, तू क्या समझ सकता है? उसकी माप पृथ्वी से भी लंबी है और समुद्र से चौड़ी है। यदि परमेश्वर बीच से गुजरे, बंदी बना ले और अदालत में बुलाए तो कौन उसको रोक सकता है? क्योंकि वह पाखंडी मनुष्यों का भेद जानता है और अनर्थ काम को देखकर क्या वह उस पर ध्यान न देगा?
परंतु मनुष्य छूछा और निर्बुद्धि होता है, क्योंकि मनुष्य जन्म ही से जंगली गदहे के बच्चे के समान होता है। यदि तू अपना मन शुद्ध करे और ईश्वर की ओर अपने हाथ फैलाए और जो कोई अनर्थ काम तुझसे होता हो उसे दूर करे और अपने डेरों में कोई कुटिलता न रहने दे, तब तो तू निश्चय अपना मुँह निष्कलंक दिखा सकेगा और तू स्थिर होकर कभी न डरेगा। तब तू अपना दुख भूल जाएगा, तो उसे उस पानी के समान स्मरण करेगा जो बह गया हो, और तेरा जीवन दोपहर से भी अधिक प्रकाशमान होगा, और चाहे अंधेरा भी हो तो भी वह भोर सा हो जाएगा। तुझे आशा होगी, इस कारण तू निर्भय रहेगा और अपने चारों ओर देख देख कर तू निर्भय विश्राम कर सकेगा। जब तू लेटेगा तब कोई तुझे डराएगा नहीं और बहु तेरे तुझे प्रसन्न करने का यत्न करेंगे, परंतु दुष्ट लोगों की आंखें धुंधली पड़ जाएंगी और उन्हें कोई शरण स्थान न मिलेगा और उनकी आशा यही होगी कि प्राण निकल जाए। 2 years बाइबल रीडिंग प्लान, 2 साल का बाइबल रीडिंग प्लान। ल्यूक 7 chapter 1 verse से 10 verse, ड्यूटरनॉमी 34 chapter। लूका रचित सुसमाचार 7 अध्याय 1 वचन से 10 वचन, व्यवस्था विवरण 34 अध्याय। 2 साल का बाइबल रीडिंग प्लान हम अपने अकेले में व्यक्तिगत समय में पढ़ेंगे। इन वचनों में से परमेश्वर हमें मार्गदर्शन करेगा, भेद खोलेगा, परमेश्वर की ऊंची डगर हमें सिखाएगा। उसको हमने नोट्स बनाकर लिखना है और उसके अनुसार हमने रोज के जीवन में चलना है। हमारे विश्वास की उन्नति करेगा इन वचनों में से, हमने उसको रोज अपने जीवन में वचन के नोट्स के साथ साथ चलना है और ऐसा होते हुए जाएंगे तो 2 साल के अंत में देखेंगे हम परमेश्वर के वचन से ढला हुआ व्यक्ति होकर निखर कर आएंगे और ऐसा व्यक्ति परमेश्वर हमें उपयोग करता है उसके राज्य के कामों में। ऐसा होने के लिए परमेश्वर ने हमें अनुग्रह दिया है, निश्चित हम इस अनुग्रह का लाभ उठाना है। प्रभु यीशु मसीह हम सब के साथ बना रहे। आमीन, आमीन, आमीन।